Good morning, students. Today, this is Ram Kumar Namdev from KV1 Sagar. Today, we are going to start our study the first chapter of geography. The topic of our chapter is the Earth in the solar system. Dear students, I divide the whole chapter into two parts. In this part, we will read and try to understand that our Earth is a planet in which we live, where and how it is in solar system. What is the status of the Earth, and also try the other things like celestial bodies. Dear students, how wonderful it is to watch the sky after sunset. In evening, sunset, the atmosphere looks very good. आसमान में हमें तारे ट्विंकल ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. डू यू नो थिंक व्हाट डज इट? रात में तारे कैसे निकल आते हैं? रात में ही निकलते हैं, दिन में क्यों नहीं निकलते हैं? If stars twinkle in day, so why they do not appear to us? यदि यह स्टार्स जो है दिन में भी निकलते हैं तो वह हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं? Students, we will try to understand and find the answers of these such types of questions. As we know, the earth and whole universe is full of wonders: sun, moon, planets, asteroid, meteorites, and many more things. We will read and discuss about celestial bodies, solar system, the sun, the moon, planets, asteroids, and meteorites. इस पूरे चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें और कौन कौन सी नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है उसको हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेलेस्टियल बॉडीज. All the heavenly bodies like the sun and all twinkle bodies are objects called celestial bodies like sun, moon, etc. Dear students, in the night, the sky, you see bright stars and moon. However, the moon keeps changing its shape, it in different shape, different size, and different position. Sometimes we see full moon, sometimes we do not able to see the moon. So we will try to understand. You can look at this picture. There is a full moon. इसमें कम्प्लीटली आपको मून दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम यह देखते हैं कि उसकी साइज़ जो है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है, और एक पर्टिकुलर पीरियड में यह जो है मून हमें डिसअपीयर दिखता है, मीन्स हमें मून दिखाई नहीं देता है. फुल मून नाइट आर पूर्णिमा. We see bright full moon, it is called Purnima. Sometimes or after a week of Purnima, it looks half, it is called half moon. After
a week of half moon, we do not able to see the moon. It is called the new moon. When moon totally covered, we did not see. It is called new moon or Amavasya. Dear students, but why don't we see them in during the day period? इन चीज़ों को हम रात में ही आसानी से देख पाते हैं, लेकिन हम दिन में यह चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। हमें दिन में यह चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सपोज़ हम कल्पना करते हैं या हम पाते हैं कि नाइट में जब हम कहीं जाते हैं रास्ते में, तो सामने से कोई वाहन आता है और उसकी तेज़ रोशनी से हमें सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से यह जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो केवल हमें रात में दिखाई देते हैं, वह दिन में होने के बाद भी हमें नहीं दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ ब्राइट सनशाइन। इस चमकती हुई सनशाइन के कारण यह ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। Therefore, bright sunshine, we are not able to see stars, moon, and other objects in daytime. Dear students, our next topic is constellations. Constellations means Taramandal. Dear students, various patterns formed by different groups of stars is called constellation. Look at these pictures. These pictures we see during night times, and during night period we see so many patterns of star like Big Bear, Orion, Ursa Major. Dear students, कॉन्स्टलेशन जो है वह तारों के समूह जो हैं उनके पैटर्न्स को हम उर्सा मेजर जो है कॉन्स्टलेशंस जो है कहते हैं। इसमें जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा, उर्सा मेजर या बिग बियर और ओरियन, उसी तरीके से a group of Saptarishi, a group of 7 stars is called Saptarishi. It is a group of 7 stars that form a part of the large Ursa Major constellation. Dear students, in ancient period or in ancient time, people used to determine direction during the night with help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. It is always constant. Dear students, पुराने समय में इन तारामंडल की मदद से लोग जो है वह दिशाओं का ज्ञान या पता जो है लगाते थे। इसमें प्रमुख रूप से जो नॉर्थ स्टार और इसको हम पोल स्टार और ध्रुव तारा भी कहते हैं, यह नॉर्थ स्टार जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा को जो है वह दिखाता है। और इस नॉर्थ स्टार उत्तर दिशा के हेल्प से हम बाकी अन्य मुख्य स्टार डायरेक्शंस को जो है वह पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. बच्चों, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनका स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। यह सभी सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वह
जो स्टार्स हैं उनके लाइट से जो है ऊष्मा और ऊर्जा जो है प्राप्त करते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम प्लैनेट्स जो है कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लैनेट्स मीन्स सम सेलेस्टियल बॉडीज which do not have their own heat and light are called planets. The word planet comes from the Greek word planetia which means wonders. बच्चों, planet जो है वह ग्रीक वर्ड प्लेनेटिया से जो है लिया गया है, जिसका मीनिंग है वंडर्स। द अर्थ इज ऑल्सो अ प्लेनेट। डियर स्टूडेंट्स, हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। द अर्थ इज अ प्लेनेट सो इट डज नॉट इमिट इटसेल्फ। चूँकि हमारी पृथ्वी जो है वह भी एक प्लेनेट है, इसलिए वह अपने से जो है वह नहीं चमकती है। इट डज नॉट हैव हीट एंड लाइट। उसका स्वयं का अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है, और यह जो है सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश जो है वह लेती है और फिर वह जो है चमकती है। द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। बच्चों, मून जो है, चंद्रमा जो है, हमारी पृथ्वी का सैटेलाइट है। सिमिलरली देयर इज मैनी अदर प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्म सोलर सिस्टम। बच्चों, इसी तरीके से और भी जो प्लैनेट्स हैं वह जो है सोलर सिस्टम को बनाते हैं, और इन सभी प्लैनेट्स के जो है अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग मून जो है और सैटेलाइट जो है होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स द सन एंड इट्स फैमिली इज नॉन एज सोलर सिस्टम। प्यारे बच्चों, सूर्य और उसकी फैमिली मेंबर से मिलकर बने हुए फैमिली को, परिवार को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इन सोलर सिस्टम द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। द सन, 8 प्लैनेट्स, satellites and some other celestial body known as asteroids and meteorites form the solar system. बच्चों, जिस तरीके से हमारे परिवार में हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर होते हैं, उसी प्रकार से सोलर सिस्टम का भी परिवार होता है। हमारे दादाजी हमारे परिवार के हेड जो है माने जाते हैं। उसी तरीके से सोलर सिस्टम में सन जो है पूरे सोलर सिस्टम का हेड जो है होता है। डियर स्टूडेंट्स, द प्लैनेट्स ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हम प्लैनेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को आप देखेंगे कि इनर प्लैनेट्स मीन्स सन के जो नज़दीक 4 प्लैनेट्स आपको दिख रहे होंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इन चारों प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। इनकी साइज जो है अदर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में छोटी होती है, और यह सभी दे ऑल आर मेड बाय रॉक्स। यह सभी जो है रॉक से बने होते हैं। इनर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन। यह सूर्य के काफ़ी नज़दीक हैं। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। यह रॉक से जो है बने हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर अगेन। आउटर प्लैनेट्स, वी सी देयर आर 4 अदर प्लैनेट्स जिनकी साइज हमें इन इनर प्लैनेट से थोड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। इसमें हम पाते हैं कि जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस और नेपच्यून। इन चारों प्लैनेट्स को हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। आउटर प्लैनेट्स आर वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट। यह जो है सूर्य से काफ़ी दूर हैं और यह साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। दे मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। यह सभी आउटर प्लैनेट्स जो हैं वह गैसेस और लिक्विड्स के बने होते हैं, जबकि इनर प्लैनेट्स जो हैं वह दे आर मेड ऑफ रॉक्स। प्यारे बच्चों, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर ऑल आउटर प्लैनेट्स। इस पिक्चर में हम आसानी से इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रॉइड्स। लुक एट द पिक्चर अगेन। प्यारे बच्चों, यदि हम इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट के बीच में यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कई इस तरीके के सम सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है हमें दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरीके की बॉडीज़, द सेलेस्टियल बॉडीज़ विच आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर और मार्स के बीच में जो सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है पाई जाती हैं, उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एस्ट्रॉइड्स जो है हम कहते हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। वह सभी सेलेस्टियल बॉडीज जो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में जो है पाई जाती हैं, उन्हें हम एस्ट्रॉइड जो है कहते हैं। अब बच्चों, एक आपको लग रहा होगा कि इस ऑर्बिट मीन्स क्या है। भाई प्यारे बच्चों, ऑर्बिट वह पाथ होता है जिसमें जो प्लैनेट्स होते हैं वह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इट इज़ अ फिक्स्ड पाथ। हर एक प्लैनेट का जो है अपना खुद का फिक्स्ड पाथ जो है होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सन। डियर स्टूडेंट, एज वी नो द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है वह सोलर सिस्टम का हेड जो है। डियर स्टूडेंट्स, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में सन जो है वह होता है। इट इज़ वेरी ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। प्यारे बच्चों, यह साइज में काफ़ी बड़ा है और यह जो है गर्म गैसों से जो है बना हुआ है। इट प्रोवाइडेड द पुलिंग फोर्सेस दैट विंड द सोलर सिस्टम। इसका अपना एक फोर्स होता है और इस फोर्स से जो है वह पूरे सोलर सिस्टम को जो है बांधे रखता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पुरानी या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं तो वह कुछ देर के बाद जो है वह पुनः धरती पर जो है वापस आ जाता है। क्यों आ जाता है? बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरीके से सन का भी अपना जो है फोर्स होता है और इस फोर्स के कारण जो है वह पूरे सोलर सिस्टम को जो है वह विंड अप जो है करके रखता है। द सन इज द सोर्स ऑफ द अल्टीमेट हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। प्यारे बच्चों, सूर्य जो है इट इज अ सोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। यह जो है ऊष्मा और ऊर्जा का जो है अल्टीमेट सोर्स है और पूरे सोलर सिस्टम को जो है वह जो है हीट एंड लाइट जो है प्रोवाइड कराता है। डिस्पाइट बीइंग इट इज़ आर नियरेस्ट स्टार। प्यारे बच्चों, सूर्य जो है वह हमारे सोलर सिस्टम में, हमारी जो अर्थ है उसमें उसका सबसे निकटतम स्टार जो है। इट इज़
फॉर अवे फ्रॉम अस, लेकिन उसके बाद भी यह हमसे काफ़ी दूर है। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। प्यारे बच्चों, यह जो है हमारी पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन मीन्स 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूर है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ we will talk and discuss about our next topic. Our next topic is planets. Dear students, in previous topic we discussed the celestial bodies which have their own heat and light. प्रीवियस टॉपिक में हमने अभी पढ़ा कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है होती हैं जिनका स्वयं की हीट एंड लाइट होती है। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स जो है कहते हैं। बच्चों, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनका स्वयं की हीट एंड लाइट जो है नहीं होती हैं। इस तरीके की सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स जो है कहते हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज़ विच डू नॉट have their own heat and lights are called planets. Dear students, there are 8 planets in our solar system. प्यारे बच्चों, हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट जो हैं। In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्यारे बच्चों, यदि हम सन से दूरी के आधार पर इन ग्रहों को देखें तो यह जो है क्रमशः मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। हम इन नामों को एक सेंटेंस के थ्रू आसानी से जो है याद कर सकते हैं। यदि आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे तो यह सेंटेंस आपको उसमें मिल जाएगा। और वह सेंटेंस कौन सा है? माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स और नूडल्स। प्यारे बच्चों, यदि हम इस स्टेटमेंट को देखें तो इसके जो हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर जो हैं वह जो है एक पर्टिकुलर प्लेनेट को जो है वह डिनोट जो है करते हैं। जैसे माई में फर्स्ट लेटर आपका एम, तो एम डिनोट्स मरकरी। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी, द फर्स्ट वर्ड ऑफ वेरी इज वी, सो वी डिनोट्स वीनस। उसी तरीके से इफिशिएंट का फर्स्ट वर्ड ई जो कि अर्थ को डिनोट करता है या बताता है। नेक्स्ट वर्ड इज मदर का फर्स्ट वर्ड इज एम जो है वह मार्स को जो है वह रिप्रेजेंट करता है या बताता है। नेक्स्ट वर्ड इज जस्ट वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर जो है वह है जे जो है वह जुपिटर प्लैनेट को जो है वह डिनोट करता है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बच्चों, जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जो है। नेक्स्ट वर्ड इज सर्व्ड जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर एस है। एस जो है वह सैटर्न को जो है रिप्रेजेंट जो है करता है या डिनोट जो है करता है। उसी तरीके से यूरेनस जो है यदि हम वर्ड देखें अस, तो अस में जो फर्स्ट लेटर है यू वह जो है यूरेनस को, और जो लास्ट वर्ड है नट्स और नूडल उसमें जो फर्स्ट लेटर है एन वह जो है नेपच्यून को जो है वह जो है बताता है। तो इस सेंटेंस के थ्रू, प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस के थ्रू हम जो है सभी प्लैनेट्स को जो है सन के डिस्टेंस, सन से उनकी क्रमशः दूरी के हिसाब से जो है उनको याद हम
कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ। हमने अभी आपको भी पहले भी अभी बताया कि जो प्लैनेट्स होते हैं वह अपने एक फिक्स्ड पाथ में सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इन फिक्स्ड पाथ को जो है हम ऑर्बिट कहते हैं। डिफरेंट प्लैनेट्स टेक डिफरेंट टाइम पीरियड टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। प्यारे बच्चों, हर एक प्लैनेट जो है वह अपनी इस फिक्स्ड पाथ में जो है सूर्य का जो है चक्कर लगाती है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वह सूर्य का एक चक्कर जो है वह लगभग 365 डेज में जो है वह कंप्लीट करती है, और इस पूरे पीरियड को हम एक 1 ईयर और रिवॉल्यूशन के नाम से जो है जानते हैं। उसी तरीके से यदि हम देखें, मरकरी विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, वह जो है सन के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में जो है वह 88 डेज जो है वह लेता है। प्यारे बच्चों, हमने अभी तक जो है पढ़ा कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं। उसके बाद हमने कॉन्स्टलेशंस के बारे में देखा, मून जो है उसके बारे में देखा कि किस तरीके से जो है वह डिफरेंट शेप और साइज़ में हमें दिखाई पड़ता है। उसके बाद हमने जो है स्टार्स के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, सन के बारे में जाना। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो कि जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, जिन्हें हम प्लैनेट्स जो है कहते हैं, उनके बारे में पढ़ा। एस्ट्रॉयड्स के बारे में पढ़ा जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ ही हैं, लेकिन यह जो है मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में जो है पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे और समझेंगे सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स। हम जो प्लैनेट्स हैं उनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है जानने का प्रयास जो है करेंगे। फर्स्ट इज मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है वह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, प्लैनेट है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विंस। वीनस जो है उससे हम पृथ्वी का सहोदर जो है कहते हैं। मीन्स ट्विंस तो आप सभी जानते होंगे, और आपने देखा होगा हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालयों में कई भाई बहन जो है वह हमें ट्विंस हैं या ट्विंस जो है दिखाई पड़ते हैं। तो उसी तरीके से वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। वीनस जो है वह पृथ्वी का सहोदर है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। प्यारे बच्चों, वीनस को हम पृथ्वी का सहोदर क्यों कहते हैं? क्योंकि वीनस की साइज और शेप जो है वह अर्थ से मिलती जुलती है। प्यारे बच्चों, इन अगस्त 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिक्लेयर प्लूटो एज ड्रॉप प्लैनेट। प्यारे बच्चों, 2006 से पहले यदि हम देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में 9 प्लैनेट्स होते थे। जो लास्ट जो नवा प्लैनेट जो था वह था प्लूटो। लेकिन 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने इसको जो है प्लैनेट का दर्जा जो है उससे ख़त्म कर दिया। क्योंकि यह जो है उसके नियमों का जो है, या उन जो कहते हैं कि उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं उनको जो है पूरा फिल जो है नहीं करता था। ठीक है, और 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसने प्लूटो को जो है
ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में या पौना ग्रह के रूप में जो है अनाउंस किया। तो प्यारे बच्चों, हमने यह देखा, समझा इस पूरे वीडियो में जो है कि किस तरीके से हमारा जो सौरमंडल या जो हमारी सोलर सिस्टम है उसमें हमारी इस अर्थ का क्या स्टेटस है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, क्या कहलाती हैं, कैसे हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोलर सिस्टम को जाना, समझा, सन के बारे में, अर्थ के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में और कुछ और डिफरेंट इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट्स जो है हमने प्लैनेट्स के बारे में देखा। सो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका जो शेष भाग है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस। थैंक यू सो मच।